Okay, but so these are the questions for the introduction to organic chemistry. As I said, these are the questions from 2021 and 22, all recent year. ठीक है, all variant. Clear? Now the question number 1. देखिए जनाब, it says, question number को ignore कीजिएगा because this is like the screenshots of these. Which compound could show both cis trans isomerism, ठीक है, and optical isomerism? Means chiral भी होना चाहिए, ठीक है, और cis trans भी show करना चाहिए. Now I can see this carbon is a chiral carbon, but the carbon bonded to a double bond, it is attached to two Br groups. So this is a wrong option. It do not show cis trans isomerism. Now this one can show cis trans isomerism, okay? And this carbon is chiral carbon as well. So it can show both cis trans isomerism and chiral as well. Clear? अब अगर आपसे इस molecule के बारे में पूछा जाता है, might be possible that they ask you to draw the optical isomers of this one. ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करें. देखिए इन रिवीजन सेशन में दैट्स व्हाट आई एम नॉर्मली डूइंग कि रेलेवेंट क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं वो हम सारे यहाँ पर आंसर करेंगे. तो इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ, तो मैं एक फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी सिस फॉर्म, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर यानी मिरर इमेज एक ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा मिरर इमेज आप वो ड्रॉ कर लीजिएगा. सो दिस इज बेसिकली अ 3D tetrahedral shape. Okay, now on the one side you have hydrogen, you can place hydrogen anywhere. On the other side you have bromine, so bromine यहाँ place कर देंगे, ठीक है. On the other side you have chlorine, ठीक है, ये हो गया. अब दूसरी साइड पे आपके पास लगा हुआ है जनाब कार्बन with one hydrogen, so आप इसी तरह लगा देंगे. फिर डबल बॉन्ड C, Br and I, ठीक है. मेन फोकस कहां पर है बेटा? हमारा मेन फोकस है ऑन दिस कार्बन. क्लियर? सो इस कार्बन को आपने सिर्फ डिस्प्लेड फॉर्म में 3D फॉर्म में शो करना है, बाकी आप लीनियर शो कर सकते हैं. और नाउ ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, सो द राइट आंसर इन दिस केस इज बेसिकली बी, because in C you do not have any chiral carbon. This is not chiral. In this one it do not show cis trans isomerism. Clear? So B is the right answer. Now question number next. Limonene is a hydrocarbon found in the ring of citrus fruit. What is the molecular formula of this one? Most of the student making mistake in writing down the molecular formula. First of all, count all the carbons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. How many carbon? 10 carbon. So C10. Now count all the hydrogen. So hydrogens के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं lines लगा रहा हूं. 1, 2, 3. And this carbon, which is this one, middle one, it is bonded to how many carbon? 1, 2, 3. 4 bonds already बन रहे हैं, so there is no hydrogen. On this one, 1, 2, 3, so 1 hydrogen. On this one, 2 hydrogens. देखिए मैं 4 bonds, 4 lines पूरी कर रहा हूं, ठीक है? 2 hydrogens and 2 hydrogens here. In this one, you have 1 hydrogen. Here you have 1 or 1, 2 hydrogen, and here you have 1, 2, 3 hydrogen. अब hydrogen count कर लेते हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So the right answer in this case is C, which is H16. ठीक है बेटा? So that's how you have to count. हमेशा यही वर्किंग कीजिएगा. पहले कार्बन्स काउंट कर लीजिए अपने डॉट लगा के, और फिर उन कार्बन पे 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए टू मेक हाइड्रोजन. क्लियर? नाउ इन दिस वन, compound P is treated with an excess of hydrogen gas in the presence of a nickel catalyst. ठीक है जनाब. The product Q is fully saturated. What is the number of chiral carbon present in product Q? अब देखें प्रोडक्ट क्यू में क्या होगा बेटा? ये सारे के सारे डबल बॉन्ड हो जाएंगे खत्म. ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि इसने कहा कि इट रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन. व्हेन इट सेज एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द डबल बॉन्ड. नाउ यू हैव टू काउंट ऑल द कार्बन्स जो कायरल है. ठीक है, तो देखिए दिस इज द कार्बन मेकिंग अ वाई, है ना, और इसके दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट अलग अलग चीजें लगी हुई है. रिंग का स्ट्रक्चर इतना इरेगुलर है, सिमेट्रिकल नहीं है. सो दिस इज कायरल. दिस इज द कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, और उसके लेफ्ट राइट अलग अलग चीजें लगी हुई है, कायरल. दिस इज द कार्बन, सॉरी, मेकिंग अ वाई, और इसके भी लेफ्ट और राइट आप स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, सिमेट्री नहीं है. इफ यू मूविंग इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपके पास
सिमेट्री नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज में कुछ और लगा हुआ है, तो दिस इज कायरल एज वेल। ये वाला कार्बन विच इज दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन इज नॉट कायरल बिकॉज इट हैज टू CH3 अटैच, तो ये कायरल नहीं है। ठीक है, क्लियर। इन अ सिमिलर वे यहां मूव करते हैं। यस, दिस कार्बन हैव वन CH3 अटैच, वन इस साइड पे एक पूरी चेन जा रही है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द चेन ऑन दिस साइड, सही है, और एक हाइड्रोजन है, सो दिस इज कायरल। इन अ सिमिलर वे दिस इज कायरल एज वेल। ठीक है, सो ऑल टुगेदर हाउ मेनी कायरल कार्बन? यू हैव 5 कायरल कार्बन। जितने भी वाई वाले इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो सारे कायरल हैं एक्सेप्ट दिस वन, ये वाला कार्बन सिर्फ कायरल नहीं है। दिस इज नॉट कायरल बिकॉज इट हैज टू CH3 अटैच, ये भी CH3 है और ये भी CH3, so this is not chiral. Okay, clear? So make sure that you know that whenever it says ke after reacting with hydrogen, so there should be no double bond present. Clear? This is answer. Without in the presence of double bond, still this is not chiral. In the presence of double bond, तो कोई भी chiral carbon यहाँ पर नहीं था। ठीक है, clear? Let's move forward और आगे चलते हैं। This is a molecule. I hope the screen is clear. In this molecule, which is hexadecanoic acid, now it has 1 2 3 4 5 6 decane है, 10 कार्बन होंगे, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। स्टेप वन में यू कैन सी यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो डबल बॉन्ड हियर, इट्स अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल विद अ कार्ब विद OH हियर। स्टेप वन के बाद यू कैन सी देयर इज अ डबल बॉन्ड हियर। ठीक है, और यहां पर एक बात और बताइए, डबल बॉन्ड सिस है या ट्रांस है? यू कैन सी इट इज अ बोथ टाइप फॉर्मेशन, सो दिस इज द डबल बॉन्ड विच इज अ सिस फॉर्म। एल्केन से एल्कीन बनाए, एंड एल्केन टू एल्कीन इज बेसिकली अ एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ hydrogen. In this stage you have a hydrogen getting eliminated. Step 2 में you can see another carbon double bond carbon is here. ओके यानी एक और डबल बॉन्ड बन गया, एंड दिस इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्म ऑफ इट इज गिवन। यहां भी यू हैव अ हाइड्रोजन गेटिंग एलिमिनेटेड, सो दिस इज आल्सो अ एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन गेटिंग एलिमिनेटेड। एंड द नेक्स्ट वन में आपके पास आपको नजर आ रहा है कि द कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। ठीक है, सो दिस एलिमिनेशन, अच्छा हाँ एक बात और है, आई डोंट नो व्हाई इट सेज, ठीक, एलिमिनेशन एंड देन देखिए अब मसला ये है कि द कार्बो ऑक्सैलिक एसिड टू एन अल्कोहल इज बेसिकली अ रिडक्शन रिएक्शन, ये तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है ना। और रिडक्शन वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम तो ये ऑप्शन पिक होगा। अच्छा, रिडक्शन की जगह डिहाइड्रेशन इसे कह सकते हैं या नहीं, तो वो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इफ यू हैव अ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड सी डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CHOH में, ठीक है ना। तो आपके पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और आपके पास ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन आप इसको डिहाइड्रेशन, आई डोंट नो किस कॉन्सेप्ट में वो कह रहे हैं, हाइड्रोजन की एलिमिनेशन स्टेप 2 में भी हमारे पास, यस वी हैव एल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर श्योर। इन दो कॉम्बिनेशन से आप इसको टेक्निकली द राइट आंसर फॉर दिस वन इज रिडक्शन, बट रिडक्शन के साथ स्टेप 2 इज नॉट रिडक्शन, so I think the most relevant answer in this case is going to be an A। ठीक है ना, इसको उन्होंने डिहाइड्रेशन का है, यू कैन कॉल, दे कैन कॉल इट अ डिहाइड्रेशन, बट हमारे पास स्टेप 1 और स्टेप 2 से एलिमिनेशन रिएक्शन आ रहा है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, सॉरी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गेटिंग एलिमिनेटेड एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट बेसिकली रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, क्लियर। सो इस स्टेप 1 और स्टेप 2 को करेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो जिस आंसर तक आए, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो स्टेप ए है। लेकिन अगर मैं इसको और डिफरेंट तरीके से देखूं, तो डिहाइड्रेशन में हमेशा याद रखिएगा कि डिहाइड्रेशन नॉर्मली हमारे पास होती है वाटर मॉलिक्यूल की, सही है ना, क्लियर। और वाटर मॉलिक्यूल की डिहाइड्रेशन के बाद आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्म होता है, क्लियर। यहां पर कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं हो रही, तो ये तो है रिडक्शन। एक ऑप्शन मेरी नजर में और आया, वो ऑप्शन क्या आया कि रेदर देन एलिमिनेशन
हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सी। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की तरफ जाएंगे तो विद रिडक्शन आई, मुझे डी आंसर मोस्ट रेलेवेंट बन रहा है, सही है। देखिए, जब भी आपके पास एल्केन से एल्कीन बनेगा, ठीक है, एल्केन टू एल्कीन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है आपके पास, ये कहलाएगी डी हाइड्रोजनेशन, इसको हम डिहाइड्रोजनेशन कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन, एक पूरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, ठीक है, क्लियर। सो ये तीनों टर्म मोर एंड ऑफ जो है वो कैम्ब्रिज जो है वो इस्तेमाल करती है, ठीक है। सो इट कुड बी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के हिसाब से डी इज द मोस्ट रेलेवेंट आंसर जो यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, in a very different way they asked about the mechanism of nucleophilic addition, ठीक है। अब जरा इस मैकेनिज्म को गौर से देखिए, एन सी वही सी एन नेगेटिव वाला आपके पास जो है वो सिलसिला है। और आप फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो सी एन नेगेटिव ने अटैक किया पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे वो चला गया, दिस इज परफेक्टली फाइन, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहां पर इन्होंने द एरो इज रॉन्ग, यहाँ पे नजर आ रहा है ना कि एरो रॉन्ग है। वाई द एरो इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो दिस इज बेसिकली रॉन्ग हेयर, सो ए रॉन्ग है। अच्छा, बी में बात करते हैं, बी में दिस रीजन इज रॉन्ग, वाई, बिकॉज दिस शिफ्ट फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये अभी हम मैकेनिज्म देख कर आए, दिस इज राइट बट दिस इज रॉन्ग, क्लियर। सी में देखें, सी में एरो ठीक है, एरो ठीक है, ये भी ठीक है, तो गलत क्या है, द रॉन्ग इज दिस वन, ओके, द कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, क्लियर। सो यहां पर देखिए, यस सी एन से बॉन्ड जा रहा है, ये भी ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एरो भी ठीक है, तो द राइट आंसर इन दिस मैकेनिज्म इज बेसिकली द डी ऑप्शन। मैंने आपको हर ऑप्शंस के हर स्टेप्स के जो है वो रॉन्ग ऑप्शन आई थिंक ये क्लियर हो गए, सो दिस इज बेसिकली the way that you have to solve this one, clear। So in this one C and D are very close, make sure that you look at this very carefully, that okay, the carbon must be partial positive on which the C and negative is getting is attacking on, ठीक है, clear। Now the next one, again the same mechanism है, what is the correct mechanism for the addition of hydrogen bromide, okay जी। Again, I think this one, yes, the arrow shift here, ये बाहर निकल जाएगा, BR. Now, this is wrong because the attack is from here till here. सही है ना, अटैक हमेशा pi bond अटैक करता है on the partial positive. This one is wrong. Also, this one is wrong. Okay, attack is always from the negative or from the double bond towards the positive. Now, this one is right. Yes, the electron shift here. This one is right. Br negative attack. This one is right. ठीक है, यहाँ पर this one is wrong. In HBr, it's always hydrogen partial positive and Br partial negative. So this one is wrong. In this one again सही है, लेकिन the direction of this arrow is wrong and the direction of this arrow is wrong. So the right answer is C in this case. Sorry, right answer is B in this case, ठीक है। So only B, everything is correct. That's how they asking the mechanism. बार बार कह रहा हूँ, देखो mechanism इसी तरह से वो आपसे पूछेंगे, ठीक है, clear। Okay, 23. Read that question. Halogen alkane react with nucleophiles such as OH negative. Which pair of halogen alkane both react via an SN1 mechanism? Means SN1 mechanism is a two-step mechanism. Means you have to search for the halogen alkane which is a tertiary halogen, जिसमें दोनों halogen alkane tertiary हो, ठीक है। So you have to search combination in which both the halogen-alkanes are tertiary. So it's a very clear answer. That like इसमें देखें, this one is basically two hydrogen here attached. So this one is primary, clear. This one is secondary. This one is primary.
This one is tertiary. Free CH3 are attached. This one is primary. So कौन सा combination बचा बेटा? Yes, the right answer is A, in which both of these are basically the tertiary halogenoalkanes. Clear? Next one. The diagram shows a structure. Okay, beta. The diagram shows the structure of the compound formed by reacting with, ठीक है जनाब, SCN के साथ reaction हो रहा है. What is the mechanism of this reaction? What is the functional group in the X? Clear? Mechanism कौन सा है? It is a nucleophilic addition. Okay? क्योंकि CN, अब देखें, CN नेगेटिव और OH तो बनता है कार्बोनाइल कार्बन से. क्लियर? अगर इन दोनों के अलावा इफ यू सी वन हाइड्रोजन एंड वन आर ग्रुप, कोई सा भी एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप हो, तो आपका रिएक्टेंट जो है इट्स गोइंग टू बी एन एल्डिहाइड. और अगर इफ यू सी बोथ आर ग्रुप लाइक इन दिस केस, देन योर रिएक्टेंट इज अ कीटोन. सो द राइट आंसर इज डी. ठीक है. सो आपके पास CN और OH के अलावा, लेट सपोज अगर ये इस तरह होता, इट कुड बी C4H9 यहां लिखा होता, यू हैव हाइड्रोजन हेयर, OH हेयर और CN. तो देखो CN और OH तो लाजमी होंगे. इफ यू सी विद बिसाइड CN एंड OH वन हाइड्रोजन जैसे ये लगा हुआ है, तो आपका रिएक्टेंट क्या होता? देन योर रिएक्टेंट इज एन एल्डिहाइड. ठीक है. अदरवाइज द रिएक्टेंट इज अ कीटोन. क्लियर? आगे चलते हैं जनाब. X2ene can be made by the reaction. सही है जनाब. अच्छा, आपको ये क्लियर है ना? एक दफा मैं क्लियर कर लूं दोबारा कि you know that this is CH3, this is CH2, this is CH2, this is C, this is CH with one I, and this is CH3. ठीक है. ये भी CH होगा. तो मेक श्योर कि आपको अच्छी तरह पता है कि स्केलेटन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. दिस इज CH3, 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 कार्बन. ठीक है. क्लियर? सो दिस इज क्लियर. अब आगे चलते हैं. Which statement about this reaction is correct? The C is behaving as a Browson lorry base. ठीक है जनाब. वो कह रहा है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, अब आपको क्लियर है कि दिस मॉलिक्यूल इज बेसिकली दिस वन. इसकी बात कर रहा है ये. वो कह रहा है ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है. आगे चलते हैं. दिस इज बिहेविंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है, चेक कर लेंगे अभी. CI बॉन्ड वीकर वाया बॉन्ड ब्रेक वाया होमोलिटिक फिशन. नहीं, इसमें इसमें होमोलिटिक फिशन नहीं होता. होमोलिटिक फिशन इज ऑलवेज, ठीक है, होमोलिटिक फिशन बेसिकली इज ऑलवेज जब आपके पास एल्केन रिएक्टेंट होता है. ठीक है. और दिस इज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. नो, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में नॉर्मली रिएक्शन होता है विद वाटर मॉलिक्यूल. सो आई थिंक देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है. ये लोन पेयर अटैक कर रहा है H पे, और H पॉजिटिव एडअप हो रहा है किसमें? H पॉजिटिव एडअप हो रहा है इस लोन पेयर पे. तो whenever the H positive is added up on a lone pair, this whole molecule is acting as a lone pair donor. इसने क्या किया? H positive को एक लोन पेयर डोनेट कर दिया और अपने साथ ऐड कर लिया. So this is basically acting as a base. So the right answer is A in this case. ठीक है. Okay जी, next one. Again, the similar type of question. Number of carbon atom in one molecule. Uh, Most of the student making error in counting the carbon number of carbon atom. As I said many times, you can write on the question paper. तो सबसे पहले तो आप मार्क कर लें नंबर ऑफ कार्बन्स. ठीक है. सो मैं ये सारे नंबर ऑफ कार्बन्स को मार्क कर रहा हूँ. ठीक है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. सो कार्बन तो मेरे पास आ गए जनाब 23. सो आइदर दिस वन और दिस वन. उसने कहा नंबर ऑफ कायरल कार्बन. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन. सो मैं इनको रब कर देता हूँ. नाउ थिंक अबाउट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन. यस, द कार्बन which is attached to the Y वाले intersection से. So this is the chiral carbon. It could be chiral, but this is bonded to a double bond, तो इसलिए chiral नहीं होगा. This is the chiral carbon. This is the chiral carbon. This is the chiral carbon. इन पे सब पे और ये वाला भी chiral है. Now this one is a chiral carbon as well, and there's no chiral carbon present here. The first this carbon is bonded to a double bond. It is not a chiral. This is basically O C double bond. Oh, so this is not chiral. So yes, number of chiral carbon कितने आ रहे हैं मेरे पास? ऑप्शंस में 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं. कोई रिएक्शन तो नहीं लिखा है इसने? 6 वाला ऑप्शंस क्यों नहीं है? दिस इज chiral, this is chiral, this is chiral, this is chiral. 1 2 3. This is chiral. Am I missing one chiral carbon here? Yes, I'm missing one chiral carbon, which is this one. ठीक है? Sorry. So yes, the right answer is 7, which is C. You can see 7 chiral carbons. ठीक है? So make sure that you carefully mark all the chiral carbon present in these type of molecules. Now, methane decomposes in a stratosphere. ठीक है? Methyl free radical form होता है. Type of bond fission, whenever there is a free radical form, the fission is always a homolytic fission. ठीक है? क्लियर. और उसने कहा है कि ये फॉर्म करता है ब्रोमीन का फ्री रेडिकल. सो यस, यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रोमीन. ठीक है? जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन में आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट्स बेसिकली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ फ्री रेडिकल. एंड इफ आई रिमेंबर था ब्रोमीन में 35 होते हैं, इफ आई रिमेंबर. लेट मी चेक. The proton number of bromine is 35. You can see. ठीक है? So this is 35. So how many electrons? Yes, it has a 35 electrons present because इसका proton number 35 होता है. Clear? Which equation represent a valid propagation step in the chlorination of ethane? Propagation step in the chlorination of ethane. देखो बेटा, this is a invalid step. If you have a concept of a mechanism, this is a invalid step. इस तरह का स्टेप नहीं होता. अच्छा, इसमें बी में होना ये चाहिए था कि एल्काइल का फ्री रेडिकल बनना चाहिए था एंड देयर मस्ट बी HCl हेयर. तो ये दोनों चीजें इन्होंने गलत बनाई हैं. द राइट स्टेप इज बेसिकली द सी स्टेप इन विच सॉरी राइट स्टेप इज बेसिकली द डी स्टेप इन विच द क्लोरीन सॉरी ये भी सही नहीं है. सॉरी माय बैड. यस, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज अ टर्मिनेशन स्टेप. मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ. दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल नहीं होता. ये वाला पॉसिबल हो सकता था, लेकिन एज आई सेड कि यहाँ पर एल्काइल का फ्री रेडिकल और HCl बनेगा. सो द राइट आंसर इज ए. अब सवाल ये है कि ए कैसे राइट आंसर हो सकता है. देखें, दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड क्लोरीन. ये सेकंड क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है. और सेकंड क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन जब होगी तो यू हैव कार्बन with one CH3, one hydrogen, one chlorine and one hydrogen. ठीक है? ये आपका रिएक्टेंट होगा which is C2H5Cl. सही है? ये आपका दिस इज योर रिएक्ट. इस पे अटैक करेगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल जैसे CH4 पे अटैक करता था. CH ऐसे ही रहेगा, ये Cl ऐसे ही रहेगा, यहाँ डॉट लग जाएगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा. ठीक है? तो ये बन जाएगा C2H4Cl प्लस साथ बनेगा HCl. तो दिस इज बेसिकली द राइट करेक्ट इक्वेशन.
मैंने गौर से इस इक्वेशन को नहीं देखा था, दैट्स व्हाई आई मेड अ मिस्टेक. सो दिस इज बेसिकली द करेक्ट इक्वेशन बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सेकंड स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जो मैंने अप्लाई करी कि यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द रॉन्ग ऑप्शन. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करता है ऑन एल्केन, हमेशा एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है और HCl फॉर्म होता है. तो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा था. ठीक है. सेकंड वाले में हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल अटैक नहीं करता. एंड दिस स्टेप इज बेसिकली नॉट द प्रोपगेशन, दिस इज अ टर्मिनेशन स्टेप. अगर हाँ वो ये पूछता कि विच स्टेप इज राइट इन which step is right in, और ये प्रोपोगेशन की टर्म ना लिखी भी होती तो D is going to be the right answer as well. ठीक है ना. which step is present in the chlorination of ethene, तो D भी possible हो सकता है. टर्मिनेशन में D स्टेप पॉसिबल होता है. ठीक है. क्लियर. ओके. Butanoic acid can be made from 1-bromopropane in stage 1. Which type of reactions are stage 1 and stage 2? Stage 1, Br की जगह CNR. It means that the Br negative is getting substituted with Cn negative. So it is a nucleophilic substitution. And in step 2 में the CN is getting converted into COOH. And it's very clear कि जब भी nitrile group is getting converted to carboxylic acid, it is a hydrolysis reaction. So this C option is basically the right option. This is not oxidation. Most of the student confuse CN to COOH that it is a oxidation. बार बार कह रहा हूँ कि this is not oxidation, this is hydrolysis. CN हाइड्रोलिसिस के थ्रू COOH में जाता है एंड CnCH2NH2 में जाता है बाय रिडक्शन. अब चूंकि ऊपर वाला दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, सो बच्चे सेकंड वाले रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं. सो दिस इज द सेकंड वन इज नॉट ऑक्सीडेशन, द सेकंड वन इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस. ठीक है. तो जब भी CnCOOH में इट्स ऑलवेज हाइड्रोलिसिस. हाउ मेनी एस्टर्स यू कैन फॉर्म विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8? सो देखिए मिनिमम एस्टर क्या है? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OC. दिस इज द फर्स्ट वन. ठीक है. अब इसे शिफ्ट कर देते हैं. CH3, C डबल बॉन्ड O, O, CH2, CH3. ठीक है. और शिफ्ट कर देते हैं H, C डबल बॉन्ड O, O, CH2, CH2, CH3. ठीक है. अच्छा, अब ये तो तीन हो गए. क्या चौथा पॉसिबल है? यस. वेनेवर यू सी थ्री कार्बन चेन, whenever three carbon chain there is a branch possible. तो आपको याद रखिएगा minimum how many carbon? 3 carbons are required for a branch. तो आप यहाँ भी CH3 लगा दीजिए, इसको CH बना दीजिए और ये CH3. ठीक है. So all together how many isomers are possible? All together 4 isomers are possible with this ester. ठीक है. हमने क्या किया? C डबल बॉन्ड O को शिफ्ट करते गए और एंड तक. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेकिंग मिस्टेक कि वो ये वाला आइसोमर नहीं ड्रॉ कर पाते. इतने सिंपल मॉलिक्यूल लाइक विद 4 कार्बन्स, एस्टर, 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और एल्कीन, यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द आइसोमर्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. Oct1ene कैन बी थर्मली क्रैक. ठीक है. विच ऑफ द कंपाउंड WXY, ये हम पहले भी कर चुके हैं. वो कह रहा है विच ऑफ दीज आर पॉसिबल. तो भाई सारे के सारे ही पॉसिबल हैं. क्यों? रीजन ये है कि 5, 6, 7, 8 इट हैज 8 कार्बन. ठीक है. तो एनी एल्केन और एल्कीन with less than 8 कार्बन are possible in cracking. ठीक है. तो ये भी possible है. This one is possible, this one is possible. So all these are basically possible when you crack this molecule. And सारे combination सारे possible किसमें होंगे? इसमें. इसमें बच्चे कंफ्यूज इस तरह करते हैं कि W के साथ कौन कौन से जो है वो कंपाउंड्स मतलब कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई चारों कैसे पॉसिबल. चारों की बात नहीं कर रहा. वो कह रहा है कुड बी पॉसिबल, यानी कौन कौन से मिल सकते हैं. तो ये सारे ही पॉसिबल हैं बिकॉज दे ऑल हैव लेस कार्बन एज कंपेयर टू अ पेरेंट एल्केन. ठीक है. तो थर्मली क्रैकिंग में ऑल दीज आर पॉसिबल. अगेन वन skeleton formula or they a very simple question they're asking about how many cis trans isomers are possible फॉर दिस मॉलिक्यूल. तो इसको आप देख लीजिएगा इंक्लूडिंग द वन शोन
ठीक है। सो देखिए, दिस इज अ कार्बन which is attached to 2CH3, तो ये तो cis trans शो नहीं करेगा, only these carbon can show cis trans isomerism. How many carbon, double bond carbon? Two double bond carbon, so the right answer is 4 in this case. ठीक है, clear? This carbon is attached to 2CH3, ये दोनों यहाँ पे क्या है, दो CH3 है, तो ये तो cis trans शो नहीं करेगा। रिमेनिंग आपके पास दो कार्बन हैं, so you have two double bond है, 2 power 2 which is 4. Repeated question है, it says के how many outer shell electrons, sorry, okay, how many outer shell electrons, make sure ke either they asking about the total electrons or only the outer shell electrons. So how many outer shell electrons on the center carbon atom must be present? देखिए, if you have this carbon, ठीक है, it has how many electron? 4 electrons. outermost कितने electron है? 4. If it is CH3, ठीक है, free radical, so this is a free radical, one electron from carbon and one electrons from hydrogen. So free radical में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 6 और एक 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन. सो फ्री रेडिकल में हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही है. क्लियर? मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ. कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, दिस इज CH3. इफ इट इज अ फ्री रेडिकल, सो कार्बन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन्स. इफ इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स. इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो हमने ये इंट्रोडक्शन वाली वर्कशीट में भी किया था, तो ऑल टुगेदर इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6, 7 and 8 in electrophile, free radical and nucleophile. The free radical substitution reaction between methane, okay, CH4, and chlorine involve the initiation, propagation, and termination step. Which row is correct? Involve in the initiation step, it is a homolytic fission. ठीक है, the free radical form in the initiation step, the free radical form in a propagation step. So the propagation step में free radical कौन सा बनता है? मिथाइल फ्री रेडिकल. अभी ये बात क्लियर की है कि प्रोपगेशन स्टेप में इट्स ऑलवेज अ मिथाइल फ्री रेडिकल, इनिशिएशन स्टेप में आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल तो इसमें बनता ही नहीं है. नो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इज फॉर्म इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन. ठीक है, सो मिथाइल फ्री रेडिकल इज फॉर्म इन अ प्रोपगेशन स्टेप, अगर आपको मैकेनिज्म याद है. अ वेरी common question, and most of the teacher asking these question in the MCQs. So वही method apply करेंगे जो आपको सिखाया. mark all the carbons, ठीक है, सारे carbons को आप mark कर देंगे. So all together to hexagonal ring, so it has 6 carbons, so 1 6 or 6, sorry, 12 carbon. So either this one or this one. Now mark all the hydrogens present. So 1 2 3 bonds, so 1 hydrogen, 1, मैं सिर्फ 4 बॉन्ड्स पूरे कर रहा हूँ कार्बन के. ठीक है, 4 4, एंड देयर इज नो हाइड्रोजन्स ऑन द मिडिल कार्बन्स. ठीक है, इन कार्बन्स पे देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट. सो 4 4 8 and 2 nitrons. C is the right answer for this one. ठीक है बेटा, सो यू हैव टू मार्क ऑल दी कार्बन्स फर्स्ट, काउंट ऑल दी कार्बन्स, अपने आंसर को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए ऑब्वियसली, एंड देन मार्क ऑल दी हाइड्रोजन एंड फाइंड आउट टोटल हाइड्रोजन प्रेजेंट. कंपाउंड कार R can be formed by 1 bromopropane using a nucleophilic substitution followed by oxidation. Okay, 1 bromopropane, C C C, and then you have bromine, all these hydrogen. ठीक है, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कौन सी ऐसी चीज बन सकती है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकती है? सो यस, इससे हमारे पास अल्कोहल बन सकता है विच कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज. Okay, nucleophilic substitution of halogen with sodium hydroxide, aqueous heat under reflux will give you alcohol. And this alcohol can be oxidized to this carboxylic acid, which is a propanoic acid. So you have to read that question carefully. इसने कहा compound R can be formed from 1 bromopropane using a nucleophilic substitution reaction. तो मुझे पता चल गया कि compound R तो एक अल्कोहल है, और 1 ब्रोमो से जो अल्कोहल बनेगा वो 1 प्रोपेन 1 ओल होगा, और प्रोपेन 1 ओल की ऑक्सीडेशन से यू विल गेट अ प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, क्लियर?
Again, this one, an alcohol X react with dicarboxylic acid Y. ठीक है, dicarboxylic acid Y to form a double ester. ठीक है जनाब, यानी you have two ester group present, one is this one and the other one this one, that's why it is called a double ester. The diagram should which draw about the reactants form ester Z is correct. The class of the alcohol. Now देखें, if you break it from here, ester linkage, this is going to be the alcohol. सही है, अब इस alcohol को अगर मैं लिखूं तो this is the carbon with one OH, one hydrogen, and you have one CH3 here and one CH3 here. ठीक है, यही है, इसी को skeleton form में लिखा हुआ इन्होंने. So this is which type of alcohol? This is a secondary alcohol. क्लियर, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. उसने कहा द शेप, इसको पढ़ रहा हूं मैं, द शेप ऑफ द रिंग इन वाई. ये जो रिंग है इसकी शेप प्लेनर होगी या नॉन प्लेनर. आई सेड मेनी टाइम कि फॉर प्लेनर मॉलिक्यूल द कार्बन मस्ट बी बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है तो द शेप इज गोइंग टू बी अ नॉन प्लेनर शेप. ठीक है, क्लियर, ये बात याद रहेगी. For a planar shape, the carbon double bond carbon must be there. If the shape is not carbon double bond carbon, the shape is a non-planar shape. ठीक है? Any carbon which is bonded to a double bond is a planar carbon. Okay, Janab. This is a very simple. That's how they're asking the mechanism, and that's why I said कि in the mechanisms, make sure कि you know the partial charges, curly arrows, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए. Okay. Which step is the correct step? Yes, I think it's clearly CN negative. This is wrong. Okay. CN negative attack a partial positive carbon and the oxygen ship B is the right answer. You can clearly see. C में आपको नजर आ रहा है, दे शोइंग लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन से अटैक दिखा रहे हैं. दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, आपको अटैक कार्बन वाले लोन पेयर से. देखिए, जो नेगेटिव चार्ज होता है ना बेटा, याद रखिएगा, इट इज अ कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन विद वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है आफ्टर मेकिंग थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, तो फिर जब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, भले हम इसको लिखते हैं सी एन नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव चार्ज नॉर्मली होता किसके ऊपर है? दिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ कार्बन. सो आपको अटैक कहां से दिखाना है? यू हैव टू शो द अटैक फ्रॉम द कार्बन. ठीक है, क्योंकि यही कार्बन जाके फिर इसके साथ अटैच होगा. सी एन बनता है ना, तो सी एन, नॉट एन सी. ये नाइट्रोजन जाके इसके साथ अटैच नहीं होता. ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा. इट इज बेसिकली द कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसलिए हमेशा इट्स फ्रॉम द कार्बन. ठीक है, वैसे इन्हें नेगेटिव चार्ज से दिखाना चाहिए, बट इन्होंने कार्बन पे लोन पेयर बना दिया विच इज अ नेगेटिव चार्ज एज वेल. एक ही बात है. सो इट्स दिस इज द राइट वे. Structure of tartaric acid with substance. A molecule of tartaric acid more than one chiral carbon. Let's check. It has this one chiral. Okay, one hydrogen, yes, and it has this one chiral. ये दोनों chiral carbon है, so it has more than one chiral carbon. सही बात लग रही है. The molecule tartaric acid is C4. कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4. हाइड्रोजन्स लगा देते हैं जनाब. सो हाउ मेनी? 1 2 3 4 ऑक्सीजन है. ठीक है, 1 2 3 4 6 ऑक्सीजन है. ठीक है, 4 कार्बन. हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4. So this option is correct as well. This is the correct molecular formula given. One molecule of tartaric acid produce 4 hydrogen ion in the aqueous solution. 4 hydrogen ion in the aqueous solution. ठीक है, this option is a wrong option because in out of all these OH bond, only these are the bond which is a carboxylic acid. और जब वाटर में जाएंगे तो सिर्फ ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे. ठीक है ना, तो you'll get 2H पॉजिटिव आयन, you'll not get 4H पॉजिटिव आयन. अगर ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते तो हम कहते हैं कि yes, they all give the H पॉजिटिव आयन. So only option 1 and 2 is correct. गौर से इस क्वेश्चन को समझिएगा बेटा. these are the type of question that making मिस्टेक. ऑर्गेनिक में याद रखिएगा कि P2
फिर भी हैंडल हो जाता है, उसमें आप लोग स्ट्रक्चर्स गलत बनाते हैं, वो रियलाइन मैं कर दूंगा आगे जाके. द मेन प्रॉब्लम इज विद द एमसीक्यूज बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज एंड अ गुड रिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिक. सो आफ्टर टुडेज सेशन इफ एनीवन ऑफ यू इज फीलिंग कि उसका रिवीजन किसी एरिया का वीक है, आइदर आइसोमेरिज्म और द मैकेनिज्म, टू गो बैक, रिवाइज इट इन अ वे in which they're asking these questions. ठीक है. Which pair include the hydrocarbon without a chiral center? So I can see a chiral center in this one. तो ये तो out of option हो गया. ठीक है. In this one, this is the chiral carbon. It has one hydrogen, one C2H5. In this one, okay, in this one, yes, ये वाला chiral लग रहा है मुझे. तो इसमें सब में ही chiral है. One CH3, one C2H5 hydrocarbon without which pair include a hydrocarbon. ठीक है. तो सब में ही कार्बन नजर आई हैव टू लुक एट इट केयरफुली. ठीक है. सो दिस इज द कार्बन दैट कुड बी अ कायरल कार्बन. सो इसके एक तरफ हाइड्रोजन है. ऑन वन साइड इट हैज CH3. ठीक है. ऑन द अदर साइड इट हैज CH2 CH3. ऑन द अदर साइड इट हैज CH2 CH3. तो इसमें तो कायरल कार्बन है. ठीक है. दोनों को चेक करना पड़ेगा. इसमें ये नहीं कह रहा कि दोनों पेयर में कायरल ना हो, किसी एक में भी ऐसा होगा तो वो सही आंसर होगा. ठीक है. ऑन दिस वन, दिस इज नॉट कायरल बिकॉज इट हैज टू CH3 अटैच. ऑन दिस वन, यस, दिस इज कायरल. ये कार्बन कायरल कार्बन है बिकॉज इट हैज वन हाइड्रोजन, वन CH3, वन साइड दिस all group and one side this entire group. So this is chiral. In this one, this is chiral for sure. In this one, this is chiral. ठीक है. Um, in this one, this is chiral. In this one, this is chiral. One CH3, one hydrogen, one C2H5 on this. On this one, this is chiral carbon. मतलब सब में ही chiral नजर आ रहे हैं मुझे. Okay, this is not chiral. And this is not chiral. So in this one, this is the only option in which you do not have any chiral carbon present. So D is the right answer. Okay, you have to check all of them and you can see last option ke last wale structure mein you cannot see any chiral carbon. Let me explain why do not have any chiral carbon. इस कार्बन पे एक क्या लगा है CH3 और दूसरा क्या लगा हुआ है दिस इज CH3 as well. So this is not chiral. ठीक है ना, ये chiral नहीं है. In a similar way, let me mark this one. Okay. In a similar way, in this one, you can see you have two CH3s attached. So this is not chiral as well. So only D is the option in which you have a एक हाइड्रोकार्बन ऐसा है एक पेयर में से which is not a chiral, which do not contain a chiral center. How many chiral center are there in two? अच्छा अब देखिए, they might give you this type of name. ठीक है ना, this is a, and they ask you to write down the structure and find out how many chiral carbon you have. So it is say 2, 2, 4, 5 tetramethyl hexane 3-ol. अच्छा, मैं कैसे पकड़ता हूँ इसे? Now this is hexane. So let's write 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. ठीक है. On the position number 2, attach 2 CH3s. Position number 3 पे एक OH लगा दीजिए and there's one hydrogen. Position number 4 पे 1, 1, 2, 3, 4 पे एक CH3 लगा दीजिए. पोजीशन नंबर 5 पे एक CH3 लगा दीजिए. ठीक है, क्लियर. अब चेक कीजिए हाउ मेनी chiral कार्बन दिस मॉलिक्यूल हैव. सही है. सो 2 पे 2 CH3 हैं, 3 पे OH लगा है, 4 पे यू हैव अ CH3, 5 पे यू हैव अ CH3. सो ओके. So these this carbon is a chiral carbon. Okay. And this carbon is a chiral carbon. So these are the two carbon that are the chiral carbon.
इस पे एक H लगा, एक OH लगा, एक ये ग्रुप. On the second one, you have one CH3, one H. So, and this cannot be a chiral carbon because it has two CH3 or last one. So these are there are two chiral carbon present in this molecule. सही है. Next one, which pair of reagent react together in a redox reaction? Okay. Now, step वन में आपके पास you can see they didn't show the double bond here, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, इट रिएक्टिंग विद ब्रोमीन. सही है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है. सेकेंड वन इज बेसिकली यू हैव एल्कोहल. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है. सो द प्रोडक्ट इज बेसिकली एन एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये प्रोडक्ट बनेगी. इट्स अ डिहाइड्रेशन elimination reaction. ठीक है. In this one you have a nucleophilic addition, which is CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो ये बन जाएगा जनाब CH3 COH. ठीक है, CH3 यहीं रहेगा और ये CN लग जाएगा. यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है आपके पास. एस्टर में की हाइड्रोलिसिस हो रही है. HCO2H बनेगा प्लस C2H5OH अल्कोहल बनेगा. ठीक है. सो विच पेयर रिएक्ट टुगेदर बाय अ रिडॉक्स रिएक्शन. सही है. अच्छा, फर्स्ट वन इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. सेकंड वन में आपके पास एलिमिनेशन हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की. द थर्ड वन इज बी रिएक्शन में आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड है और इसके बाद ये. ठीक है. सो बताइए जनाब, विच वन इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन इन विच अ रिडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? हाँ भाई, देखें, ये आपके पास क्या है? ये Br 0 है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है. जब ये जाकर ऐड होगा ब्रोमीन में, सॉरी इस एल्कीन में, तो ये बन जाएगा CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड Br H NH. ठीक है ना? यानी Br2 विच इज न्यूट्रल से ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Br नेगेटिव में. ठीक है ना? Br नेगेटिव में. तो हम मोस्ट क्लोजली, बहुत डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है वैसे तो, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे बहुत डिफरेंट वे में देखना चाहें तो यस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कन्वर्ट हो रही है -1 में. तो द क्लोजेस्ट आंसर फॉर मी इज बेसिकली द ए. बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा है. H पॉजिटिव CN नेगेटिव ब्रेक हो रहा है, एडअप हो रहा है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रही है. हाइड्रोलिसिस में भी रिडॉक्स रिएक्शन कहीं भी नजर नहीं आ रहा. जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वैसे ही रहता है. सिर्फ ये नजर आ रहा है कि यस, इन दिस वन यू हैव ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और एड अप होने के बाद चूंकि ये एक कोवलेंट कंपाउंड बन जाएगा, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन दिस वन इज Br नेगेटिव. ठीक है ना? जैसे HBr में ब्रोमीन Br नेगेटिव होता है, इन सिमिलर वे इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड द ब्रोमीन इज Br नेगेटिव. ठीक है. P2 के कुछ क्वेश्चंस एंड देन वी विल वाइंड इट अप. ओके. The table shows the structure formula of the four compounds. ठीक है. Complete the table by giving the systematic name. अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया? अगेन द सेम ईयर 21-22 का क्वेश्चन है. पिक करने का वजह यह है कि आपको सिस्टमैटिक नेम में whenever it is a cis and a trans form, जैसे ये आपके पास नजर आ रहा है ना, this is a cis form and this is a trans form, तो आपको नेमिंग में cis और trans भी लिखना होगा. ठीक है. This is but 1 ene.
Okay, and this is cis. Okay, but टू इन, सही है। cis के बाद भले तो आप डैश ना लगाएं और चाहे तो लगा दें। दिस इज ट्रांस ब्यूट टू इन, एंड इसकी नेमिंग क्या होगी जनाब? लेट्स ड्रॉ इट इन अ स्ट्रक्चर डिस्प्ले फॉर्म। सी डबल बॉन्ड सी, देन यू हैव CH3 here and CH3 here, sorry, CH3 here, ठीक है। And this carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, so it is 2 methyl, मोस्टली स्टूडेंट इसकी नेमिंग गलत करते हैं। prop 1 इन, 2 methyl prop 1 in। ओके, सो क्या आपकी सीखा ये कि if it is a cis form, make sure that you write cis form in the naming. If you have transform, तो आप transform भी naming में लिखेंगे। So that's what is meant by the term stereoisomerism. Yeah, two organic compound having the same molecular formula but different arrangement of atoms, ठीक है। So इसकी naming में आप proper इसकी definition लिखेंगे। Definition का key point है different arrangement of atoms, ठीक है। क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन। देखिए इसने कहा ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन विद OH नेगेटिव, सही है। ड्रॉ ऑल दी चार्जेस, तो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ ऑल दी चार्जेस, लोन पेयर्स और वो सारी चीजें आप ड्रॉ करें, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप जो है वो इसको इस तरह से लिखें। यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाइए, ड्रॉ दी लोन पेयर। दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव। इसका अटैक दिखा नहीं, बल्कि नहीं, अभी अटैक नहीं दिखाएंगे क्योंकि दिस इज अ टर्शियरी हैलोजन अल्केन, ठीक है। तो आप दिखाएंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ब्रोमीन की तरफ। मेक एन एरो एंड ड्रॉ सी CH3 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 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब आप इस नेगेटिव चार्ज से अटैक दिखाएंगे और साथ में आप Br नेगेटिव चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए कि इसमें से अलग हो गया। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटाइन। और उसके बाद आप दिखाएंगे कि यस COH बन गया। ड्रॉ दी लोन पेयर्स CH3 CH3 CH3, क्लियर। और Br नेगेटिव आपने एक जगह दिखा दिया, तब दूसरी जगह दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सो मेक श्योर कि आप इसको इस तरह से ड्रॉ करें। नेम द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब भी इस तरह का हो आप इसको लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और साथ में लिख दीजिएगा SN1, लाजमी लिखेगा आप। ओके, मेक श्योर दैट यू राइट SN1 हियर। ओके, गिव द सिस्टमैटिक नेम टू कंपाउंड दिस। अब देखिए मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनॉन, ठीक है। नहीं, सॉरी, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेनॉन, ठीक है ना। क्लियर, मैं इसका डिस्प्लेट बना देता हूं। दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर, H2 और एक Cl लगा है, ठीक है। H2 and you have one Cl, ठीक है। So it is 1 2 3 1,3 dichloropropionone because it is a ketone, सही है। That's how you have to give the name. Name the function group present in M that changed during this reaction. Which function group changes? तो आप लिखेंगे the ketone group that get changed in this reaction. You can see the ketone is getting converted to a secondary alcohol. State the suitable reagent, तो NaBH4 के साथ आप इसका any reducing agent, ठीक है ना। NaBH4 वाला रिएजेंट यहाँ पर लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन के लिए। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ वे दैट गिव द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। जो मेथड मैंने आपको बताया, अप्लाई दैट मेथड 1 2 3 4 5 6,
ऑल्दो यू कैन इजिली काउंट इट, लेकिन मेथड ये है कि मार्क देम फर्स्ट। ठीक है, तो 6 6 6 C 18 H कितने होंगे बेटा ऑन एवरी बेंजीन रिंग इफ देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, जहां जहां सब्स्टिट्यूशन नहीं है वहां वहां आ जाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर? सो ऑल दीज आर द हाइड्रोजन एटम्स। तो H कितने हो गए जनाब? 5 लगे ना, H 20 and P. Most of the students, whenever I ask these type of question, forget to write about this P. So in a empirical molecular formula or empirical formula, you must have. This is basically the molecular formula. Can you take any number common? No, है ना, नहीं ले सकते ना। अगर ये P2 होता तो हम फिर भी कॉमन ले सकते थे, but at this is only one P, तो the empirical and the molecular formula for this is same। ठीक है, जो इसका empirical formula है वही इसका molecular formula होगा। Same molecular and empirical formula। ठीक है बेटा, अगेन क्विकली एंड करते हैं इसको। यस, on the diagram draw the orbital represent the pi bond, that is also orbital draw करना है जो pi bond को represent करे, तो आ p orbital। ठीक है, unhybridized p orbital आपने draw कर देने हैं यहाँ पर। state the hybridization whenever carbon is making a pi bond it is sp2 hybridized। ठीक है, जब आप ये draw करेंगे तो make sure कि आप dash line से इसको remember this is ethene कम, सही ना? इसमें कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर? उसके बाद कंपाउंड टी इज एन आइसोमर ऑफ C6H12, नेम कंपाउंड टी। अब देखिए जनाब, कंपाउंड टी, मेक श्योर कि आपको स्केलेटन की ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। सो दिस इज कार्बन, डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन, 1 CH3 हेयर। हम इसको इस तरह लिख लें तो हमारे लिए नेमिंग आसान हो जाती है। 1 CH3 हेयर and 1 CH3 here। ठीक है, 2 CH3 and then again it has 2 CH3s। अभी बन गया स्ट्रेट चेन। ठीक है, CH3 CH। सो अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। So can I say it has 1 and 3, 1, 3 dimethyl bute 2 ene। ठीक है, 1 और 3 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये ब्यूटीन है विद डबल बॉन्ड ऑन द पोजिशन नंबर 2। ठीक है, इन अ सिमिलर वे bromine reacts with butene। ठीक है जनाब, in the UV light to form the two structure isomers of the, इसके दो structural isomers आपको बनाने हैं बेटा। So yes, CH3 CH2 CH2 and CH2Br। तो इनको लिख लेते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सही है, और इसका एक आइसोमर बनाते हैं CH3 CH2 CH Br CH3 which is 2 bromo butane। Clear? Identify the type of acid, that's called basically the position isomer। देखिए ऊपर उसने खुद ही बता दिया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने, तो मेक श्योर कि आप टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आंसर कर देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आइसोमेरिज्म, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है। दिस इज बेसिकली द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको लिखनी है, पोजीशन या फंक्शन ग्रुप वट आपने जो भी ड्रॉ किया है। क्लियर? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपने पार्शियल चार्जेस दिखाने हैं, लोन पेयर दिखाने हैं एंड देन आपने एरोस बना देने हैं। तो आपने इसका अटैक दिखाना है इसके ऊपर। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके दिखाने हैं। दैट्स इट, डन। और इस पे लोन पेयर दिखा दीजिएगा। मेक श्योर दे कि आप नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर ड्रॉ कर दीजिए, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वैसे अगर आप लोन पेयर ड्रॉ कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, and that's going to be the last part of it। Okay, again the same है, this is partial positive, all lone pairs of chlorine partial negative।
then you show the attack of this from here till here, and you show कि ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल, ठीक है, एंड देन यू शो सी सी एच एच, क्लोरीन इन्होंने कहाँ लगाया है जनाब, जिसपे, हाँ क्लोरीन इन्होंने लगाया है, देखो क्लोरीन इन्होंने इस कार्बन पे क्लोरीन लगाया है, ठीक है ना। तो मैं इसे लिखूंगा इस तरह, सी एच एच एच, ये तो बन गई सिंगल बॉन्ड, सी एच थ्री पॉजिटिव, प्लस Cl नेगेटिव, और इस नेगेटिव से चार्जिंग, ठीक है। देखिए, आप मेक श्योर कि आप बहुत क्लियरली इस बात को समझ लें कि दिस क्लोरीन इज एडेड ऑन दिस कार्बन, ठीक है ना, क्योंकि दिस कार्बन पे क्लोरीन लगाया है, उसी पे दो CH3 ऑलरेडी अटैच हुए हैं, और एक तो मेरा ये वाला CH3 खुद से बन गया। सो मेक श्योर कि आप इस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डूइंग दिस मैकेनिज्म रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई पिक दिस क्वेश्चन। तो मेक श्योर व्हेनेवर दे आस्क यू अबाउट द मैकेनिज्म, बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ऑन विच कार्बन यू हैव हाइड्रोजन गेटिंग अटैच एंड विच कार्बन यू हैव द अदर group getting chlorine getting attached. Okay, so I'm just keeping it till here for today. That's more or less all the introduction questions that were present in the last 2 years, like 21, 22 May. We'll keep doing organic next sessions.